वेरी गुड इवनिंग वन एंड ऑल। कैसे हैं आप सब? हाँ जी। ऑनलाइन वालों कैसे हैं आप सब? Fine. हाउ वाज द टेस्ट टुडे? How was the test? I think all have gone to their comfort zone. They are sitting at home in comfort zone. Okay, and nobody is keen to come out from their blanket. सबको ठंड लगनी शुरू हो गई है। हाँ जी। I am taking the feedback about test. How was it? No reply. Anmol is saying easy. What about the rest? Were you able to manage? Mr. Jindal Sahib, Navjot, Manveer, Manish, Tarun. It was okay, ma'am. When you were getting ready for the test, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, तो आपको कोई टॉपिक ऐसा ऑनलाइन या ऑफलाइन जो आपको कोई लाइन, कोई फार्मूला, कोई एग्जाम्पल जो आपको ऐसा लगा कि आपको नहीं समझ में आया था क्या? आई वॉज जस्ट एक्सपेक्टिंग, जैसे ही आपने वर्ड डिफरेंस बोला ना, मेरे को लगा कि आप यही पूछने वाले हो। ठीक है। एज सच पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम में कोई फर्क नहीं है। बस जब हम प्राइवेट इनकम निकालते हैं तो उसमें से जो गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड ऑल दैट,
तो वो हम उसमें से निकाल देते हैं। नहीं, प्राइवेट इनकम निकालते वक्त जब हम करते हैं ना, तो ऐसा दोनों सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। बट जब हम प्राइवेट इनकम निकालते हैं तो प्राइवेट इनकम में जितनी भी गवर्नमेंट की इनकम्स होती हैं, दैट वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट, राइट। एनी अदर डाउट? इट डिपेंड्स कि आपके पास इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ठीक है, इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी अदर डाउट? I think you all have decided to remain quiet. It's good. Stay quiet. Let's start. I'm not going to give you a briefing of my previous lecture. I hope you are clear ki what is asymmetric information, what is adverse selection, what is moral hazard, what are the causes for the failure of, what is the causes for the failure of, what is the causes for the failure of market? How many causes do we have? 4 causes. What are those causes? Market power, externalities, public goods, and incomplete information. Can we have all together? What are the causes for market failure? Market power, public goods, externalities, and incomplete information. Market power, we discuss about monopoly. Externalities, we discuss about third party. Public goods, we discussed about public merit and demerit goods. And incomplete information, we are going to discuss specifically about asymmetric information, where out of the 2 parties, that is buyer and the seller, one party has got comparatively more information than the other party. Okay. So these were the causes. Akib, can you tell me what do you mean by free rider problem? In which type of goods we will have the problem of free rider? Free rider problem is going to be there in case of Amit. What do we mean by a lemon problem? Second hand poor quality cars. Lemon problem क्या है? Second hand poor quality cars. Now we have seen कि जब भी हमारे पास ऐसे मार्केट फेलियर होता है, तो उस मार्केट फेलियर को ठीक करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक जना है. Nobody else can do that. Okay? Market failure है. Market fails to have an optimum utilization of the resources. Market fails to have proper allocation of the resources. तो उस केस में जब मेरे पास मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, हु इज गोइंग टू टेक केयर? देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट. मार्केट फेलियर के केस में जब भी मेरे पास कोई आएगा तो उसको ठीक करने के लिए मेरे पास कौन है? It is to be taken as a government, and today we are going to start with the same thing, that government intervention to minimize the market power. अब आपने देखा था 4 टाइप ऑफ थिंग्स: प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट बेनिफिट, सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट. एनी डाउट अमंग these 4? Was it clear? What is the social cost? Is it a positive externality or a negative externality? Negative externality. And social cost we are going to pay in the form of what? Pollution, degradation. So because the total social cost imposed by the monopoly, government intervenes. ठीक है? अब intervenes क्या है? Please underline. Competition Act 2002 amended in 2007. We are going to sustain competition in the markets. आपके पास Competition Act कौन सा है? 2007. Amended in मतलब 2002 but amendment हुई थी 2007. The antitrust law जो हमारे पास US और UK में है, they were being designed to restrain the competition or to have consumer exploitation. हमने पिछली क्लास में लास्ट चीज हमने क्या बोली थी? That I need to spread a consumer awareness that one is not going to be exploited. तो अब इसके लिए मेरे पास कौन कौन से मेजर्स हैं? सबसे पहले है मार्केट लिबरलाइजेशन, कि मैंने मार्केट को लिबर्टी दे दी है. लिबर्टी इंडिकेटर्स आर देयर. यू कैन नॉट हैव अ मोनोपोली.
जब आपके पास लिबर्टी आएगी, यू आर गोइंग टू हैव ऑल दीज थिंग्स, तो आपके पास लिबरलाइजेशन जब आएगी तो नेचुरली मोनोपोली क्या होगी, ब्रेकअप होगा उसका, राइट। कंट्रोल ऑन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, मतलब मैं कोलूसिव ओलिगोपोली की तरफ नहीं जा रही हूँ। आई एम नॉट इनकरेजिंग कार्टल्स, आई एम नॉट इनकरेजिंग कि कोई बड़ी मछली आके सारी छोटी मछलियों को खा जाए, नो। कंट्रोल है क्योंकि मार्केट में लीडरशिप नहीं होने देनी है। प्राइस कैपिंग एंड प्राइस रेगुलेशन, प्राइस कैपिंग एंड प्राइस रेगुलेशन में हमारे पास क्या आ गया, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर, that we are going to fix up the minimum price or we are going to fix up the maximum price. प्रॉफिट के ऊपर we are going to fix up कि कितना हो सकता है। कंज्यूमर एसोसिएशन जो है, टफ कंपटीशन इनटू कार्टेलाइजेशन एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस, इसको रोकना है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द मोनोप्सोनी, व्हाट इज अ मोनोप्सोनी, सिंगल बायर। मोनोप्सोनी क्या है, जिसमें मेरे पास सिंगल बायर होता है। इंपोर्ट कंट्रोल्स एंड नेशनलाइजेशन, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है डायरेक्ट आपके पास आएगा। अब देखो आपके पास क्या है, sometimes we find that government protect monopoly position of the firms that have built unique innovation। जैसे आप ये यूनिक इनोवेशन याद रखना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर वर्ड आ रहा है। जहां पे वर्ड यूनिक इनोवेशन आ गया ना, मतलब वहां पे मेरे पास एक तरीके का क्या चीज है, इट इज गोइंग टू बी अ मोनोपोली। दिस यूनिक वर्ड इज गोइंग टू हेल्प इन द केस ऑफ कॉम्पिटिशंस फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो, एंड इट इज हेल्पफुल इन द केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो। कि जहां पे मेरे पास यूनिकनेस का फीचर आ गया, इट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन आई डू हैव ओवर देयर, आई विल हैव अ मोनोपोली, ठीक है। जैसे मेरे पास पेटेंट एंड कॉपीराइट है, यू कैन सी जियो क्या कर रहा है, जियो इस टाइम के ऊपर एक तरीके से मोनोपोली एंजॉय कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसके ये जो यूनिक इनोवेशंस थे, यूनिक इनोवेशंस, जिस प्राइस के ऊपर उसने लॉन्च किया था अपना प्रोडक्ट, कि शुरू में सबको उसने फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया, जो कि कोई भी सोच नहीं सकता था। तो दैट इज टू बी टेकन एज अ यूनिक इनोवेशन। तो पेटेंट राइट है, हाँ जी, काइंड ऑफ मोनोपोली। मार्केट पावर तो आपके हाथ में थी ना। अभी भी आप देखो आपके हाथ में जो इंटरनेट की मार्केट पावर है वो किसके पास है, जियो के पास है। बाकी जितने भी हैं, एयरटेल है, बीएसएनएल है, दे आर गोइंग टू सेट द प्राइसेस एज इट इज गोइंग टू बी गाइडेड देम बाय देयर लीडर। और लीडर कौन है, जियो है, ठीक है। अनदर एग्जांपल जो आप में इसमें ये कर रहा है, दैट इज टू बी टेकन एज अ नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोलीज में क्योंकि एक क्वेश्चन है आपके पास, अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस है, डोंट टेक द थिंग्स लाइटली। नेचुरल मोनोपोली के केस में आप या तो यूनिक इनोवेशन है या आपके पास क्या है, नेचुरल मोनोपोली है। तो नेचुरल मोनोपोली के केस में भी यू आर गोइंग टू एंजॉय काइंड ऑफ मोनोपोली। उसकी एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस है, वाटर सप्लाईज। ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक यूटिलिटी गुड्स। पब्लिक यूटिलिटी गुड्स के ऊपर आपकी चाहे गवर्नमेंट की मोनोपोली क्यों नहीं है, बट वहां पे आपके पास मोनोपोली तो है ना, चाहे वो गवर्नमेंट की है। अब उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नैलिटीज। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब मेरे पास एक्सटर्नैलिटीज आती है तो गवर्नमेंट उसमें, इसमें थोड़े थोड़े से पॉइंट्स आपके पास आएंगे। अब आप सबको पता है कि एक्सटर्नैलिटीज क्या है। देयर इज अ वन पार्टी, वी हैव अ सेकंड पार्टी, सेकंड और फर्स्ट पार्टी के बीच में उसका इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट था जी ये, रोहित? एक्सटर्नैलिटीज में हमने कौन से इफेक्ट के बारे में स्टडी किया था? What was the name of that effect? Anybody offline? Who was Kaji over here? बताया। What was it? It was to be taken as a spillover effect, neighborhood effect। मैंने आपको बताया भी था। Yes, जिंदल जी बहुत अच्छे। I hope this you are not letting me know by cheating, right? तो आपके पास क्या है, स्पिल ओवर इफेक्ट था। तो स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होता है कि हमेशा नेबरहुड में उसका इफेक्ट होता है, आपके पास उसका इफेक्ट नहीं होता। So to promote the overall welfare all the members, social returns should be maximized and social cost has to be minimized.
ऑफ कोर्स बीइंग अ डेमोक्रेटिक सेटअप मेरा पर्पस क्या है, वेलफेयर का। मेरा बेनिफिट हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मेरी कॉस्ट हैज टू बी मिनिमाइज्ड, राइट। एंड एक्सटर्नैलिटी, प्लीज पे अटेंशन, एंड एक्सटर्नैलिटी इज इंटरनलाइज्ड, मतलब वो इंटरनल कब बन जाता है, that generates the externality incorporate into their private or internal cost। जब मेरी प्राइवेट कॉस्ट होती है उसमें मेरा ये जो सोशल कॉस्ट वाला एलिमेंट है उसको मैं इंक्लूड नहीं करती। प्राइवेट कॉस्ट में आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड माय नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कि अगर मैंने ये काम कर दिया तो उसका मेरे नेबर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है वो मैं कंसिडर नहीं कर रही, राइट। तो यहाँ पे इन केस एंड एक्सटर्नल कॉस्ट नेगेटिव है, थर्ड पार्टी पेयर्स। ये तो नहीं है ना कि जो आपके पास मान लो आरएमएस है, ठीक है, मैंने पिछली बारी भी शायद आपको यही एग्जांपल दी थी। अब आरएमएस के बच्चों को लेट छुट्टी होती है, उन्होंने क्या किया, नीचे आपके लिए एक लाइट पोस्ट लगा दिया, तो ये क्या हो गया, कौन सी पॉजिटिव, इंटरनल पॉजिटिव हुई। This is a benefit given you by your own center। ये गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये बेनिफिट आपको किसने दिए, आपके ओन सेंटर ने दिया, तो ये इंटरनल पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है। बट क्योंकि वो जगह ऐसे के ऊपर लगा हुआ है तो इसका बेनिफिट जो पासर बायज हैं जो निकल रही हैं उनको भी मिल रहा है, उनको क्या बन गया, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी बन गई। तो आपकी इंटरनैलिटी जो है, जो आपका इंटरनल बेनिफिट है, it can be a positive externality and it can be a negative also, दोनों हो सकते हैं, आपके डिपेंड्स कि मेरे पास क्या है, right। So to create the externalities include while making decisions, government have numerous methods and we are going to learn that method कि government अपनी cost को minimize कैसे करती है और अपना benefit कैसे करती है। प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट डाउन दीज पॉइंट्स क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्या है, direct control or regulation that openly regulate the actions of those involved in the generating negative externality। आप देखो चंडीगढ़ में अब क्या है, आप कोई भी चीज चला रहे हो, अपना एक्टिवा चला रहे हो, अपना कार चला रहे हो, तो चंडीगढ़ अब किसको प्रमोट कर रहा है, हॉन्किंग, स्टॉप हॉन्किंग, मतलब हायरन क्या, हॉर्न, हॉर्न नहीं बजाना, राइट। या अगर आपके पास आप चंडीगढ़ टू दिल्ली जाते हो तो दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा है, ठीक है, तो दिल्ली ने क्या बोला हुआ है कि जो भी गाड़ियां आपकी 15 साल पुरानी है दे आर नॉट सपोज टू एंटर टू दिल्ली। तो ये किस चीज की एग्जांपल है, दिस इज अ डायरेक्ट कंट्रोल की एग्जांपल कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है कि चंडीगढ़ में प्लास्टिक फ्री जोन बनाना है, चंडीगढ़ में ड्राई और वेस्ट वेट वेस्ट को अलग करना है, कोई भी पुरानी गाड़ी पोल्यूशन वाली है उसको अलाउ नहीं करना है। तो ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग अंडर द डायरेक्ट एक्शन और वो क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू अवॉइड द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। सेकेंड पॉइंट क्या, मार्केट बेस्ड पॉलिसीज दैट वुड प्रोवाइड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। मार्केट बेस्ड पॉलिसीज में हमारे पास क्या आएगा, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर आ जाएगा। डायरेक्ट कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कमांड सॉल्यूशंस, क्योंकि कमांड इकोनॉमी कौन सी होती है, प्लान्ड इकोनॉमी होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ पास करती है, फिक्स एमिशन, मतलब अब आपके पास कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में पोल्यूशन होना ही होना है, देयर इज नो अदर वे। तो गवर्नमेंट फिक्सअप कर देगी कि आपके पास कार्बन क्रेडिट इतना है, आपकी फैक्ट्री से इतना कार्बन निकालने की परमिशन है, इतना पोल्यूशन होने की परमिशन है, अगर आपको इससे ज्यादा हो रहा है दैट यू आर गोइंग टू बी चालान फॉर दैट, राइट। तो सर्टेन जैसे उन्होंने क्या बोला है, मॉनेटरी पेनल्टीज हो सकती हैं आपके आगे, लाइसेंसिंग, प्रोडक्शन कोटा, मैंडेट्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेबल प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन ऑफ यूज ऑफ मेनी कमोडिटीज है, स्मोकी इज कंप्लीटली बैंड है, tobacco is completely banned and no need to explain all these points। गवर्नमेंट में पास था laws to elevate effects of negative externality that specifying the environment, कौन से एक्ट के अंदर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, आपके जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ,
राइट, एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म जो एवरेज कॉस्ट को इंक्रीज कर रहा है, आई कैन कंट्रोल दैट। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्पेशल बॉडीज को बना सकती है विच आर गोइंग टू चेक कि आपके पास कौन सी फैक्ट्री या कौन सी चीजों में वायलेशन हो रहा है। जैसे मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, पोल्यूशन कंट्रोल है एंड स्टेट पोल्यूशन। ओके जी। द मार्केट बेस्ड अप्रोचेस गवर्नमेंट इन्वायरमेंटल टैक्सेस है, कैप एंड ट्रेड। कैप एंड ट्रेड क्या होगा, underline the word cap and trade. Price mechanism to create an incentive for change. What do we mean by this line, online students? हाँ जी, कोई बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? No, it's not like that. Tries to alter the prices. क्या मतलब वो क्या कह रहे हैं कि आपको प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू तो ऑपरेट करना ही करना है। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ, डिमांड एंड सप्लाई टू क्रिएट एन इंसेंटिव फॉर चेंज। मतलब मैं आपको टारगेट दे रही हूँ अचीव करने के लिए कि ठीक है मार्केट फोर्सेस के थ्रू आप काम कीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू अचीव दिस टारगेट, तो आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, आपको ये करना है, आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, तो उसमें उनको किसी ना किसी तरीके का, जैसे आपको क्लास में इंसेंटिव्स दिए जाते हैं कि इफ यू आर गोइंग टू गेट 80% प्लस तो आपको ये इंसेंटिव, आपको ये मोटिवेशन मिलेगी, तो वैसे ही गवर्नमेंट भी वहां पे करती है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इज गोइंग टू ऑल्टर द प्राइसेस। वो सिर्फ दो चीजें हैं, दैट इज ईदर थ्रू टैक्सेस और थ्रू सब्सिडीज। सेटिंग द प्राइस डायरेक्टली थ्रू अ, किसके थ्रू, pollution tax, and setting the price indirectly through the establishment of cap and trade system. Underline the word cap and trade system. अब यहाँ पे आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, द वंस हु आर नॉट पेइंग अटेंशन प्लीज पे अटेंशन। वन ऑफ द मेथड ऑफ इंश्योरिंग इंटरनलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। मतलब क्या हुआ कि अगर पोल्यूशन हो रहा है तो इट इज टू बी टेकन एज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, बट लेट इट मेक अ इंटरनल, मतलब जिनकी वजह से वो पोल्यूशन हो रहा है, इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, उनको भी इसकी कॉस्ट को बेयर करने दो। मेरे को ही क्यों एस्थमा हो, जो उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको भी एस्थमा होना चाहिए, मतलब दे शुड ऑल्सो बेयर द कॉस्ट। ठीक है, और इसी के लिए प्लीज अंडरलाइन कि आपके पास इंट्रोड्यूस्ड किया गया पिगोवियन टैक्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या किया गया, पिगोवियन टैक्स, और किसने इंट्रोड्यूस किया था, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीगू, प्रोफेसर पीगू। तो उसी की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, पिगोवियन टैक्स भी है और पिगोवियन सब्सिडी भी, दोनों चीजें हैं मेरे पास। I do have a system of the tax, I do have a system of subsidy. और ये टैक्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने कितना पोल्यूशन किया, राइट। These taxes have effect of making of the polluter pay, कि जो आपके पास पोल्यूशन कर रहे हैं लेट हिम पे दैट, मतलब एक तरीके से चलान हो गया, आपने रेड लाइट जंप की तो आपको अपना चलान भरना है, तो वो चलान इज गोइंग टू बी व्हाट, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ पिगोवियन टैक्स। अब यहाँ पे तो पढ़ने में आपको बड़ा आसान लग रहा है, ये भी कोई मुश्किल बात है, हम याद रखेंगे, बट जब पेपर में बात आती है और पेपर में आपसे ये पूछा जाता है कि विद विच रेफरेंस दिस टैक्स वाज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, और जो आपके पास ऑफर्स आती हैं वो इतनी क्लोज बाय होती हैं कि यू गेट कंफ्यूज, और ऐसा ही होता है। ठीक है, आज के पेपर में किस किस ने ये प्रॉब्लम को फेस किया, ये आपको लगा कि ये भी इसका आंसर हो सकता है, ये भी इसका आंसर हो सकता है, इट इज नेचुरल, होगा ये, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा ये होगा, तभी आपको इंटेंसिव स्टडी की जरूरत है। तो कीप इन माइंड पिगोवियन टैक्स कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है, इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड विद रेफरेंस टू अ पोल्यूशन ओनली, राइट। हाउएवर देयर आर द प्रॉब्लम्स जो उसको एग्जीक्यूट करने में लगी। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी कि हमें यही नहीं पता कि कितना पोल्यूशन हुआ है, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, क्योंकि उसको मॉनिटर करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट।
और अगर जो डिमांड जो पोल्यूशन कर रही है उसकी डिमांड अगर इनइलास्टिक है, ध्यान से समझना इस बात को, राइट। सीए की डिमांड इनइलास्टिक है, बट सीए एजुकेशन मार्केट में पोल्यूशन कर रहे हैं, और उस पोल्यूशन को रोकने के लिए मैंने क्या कर दिया, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। मेरी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है, टैक्स लगा के मैंने क्या कर दिया, उसको और एक्सपेंसिव बना दिया। तो गलत किया ना, एक तो वो मेरे लिए नेसेसिटी है और ऊपर से मैंने उसके ऊपर प्राइस लगा दिया, ठीक है। तो उसकी डिमांड में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। आइए बात समझ में, आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, बट उसकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। आई होप यू नो व्हाट इज इनइलास्टिक डिमांड, कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि वो इकोनॉमी में, वो सोसाइटी में पोल्यूशन कर रहा था, मैंने क्या किया, पीगू टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। पीगू टैक्स का मतलब पिगोवियन टैक्स लगा दिया। और जब भी मैं किसी चीज के ऊपर टैक्स लगाऊंगी उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट उसकी डिमांड क्या थी इस केस में, इनइलास्टिक थी। तो अगर मैंने उसके टैक्स लगा दिया, टैक्स लगा के उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी ना, तो मेरी डिमांड कम होनी चाहिए, मेरी डिमांड कम होगी, बट द चेंज इन डिमांड विल नॉट बी वेरी सिग्निफिकेंट। मतलब जो मेरा पर्पस था पोल्यूशन को कंट्रोल करने का वो नहीं पूरा हो पाएगा। Am I clear for this? Right? Then pollution tax also have the potential to negative consequences on the employment and investment. क्योंकि जब आपके पास पोल्यूशन टैक्स लग गया तो जो कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं। दे विल हैव अ फियर इन द माइंड कि हमारे ऊपर कहीं टैक्स पे टैक्स ना लग जाए, राइट। तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो आपके पास unemployment is going to be considered as a negative externality. Online students, am I clear for this? Yes, ma'am. अब पहला तरीका तो पीगू ने सुजेस्ट किया कि मेरे पास क्या होना चाहिए, पिगोवियन टैक्स होना चाहिए। Am I clear, रुपिंदर, for this? सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, आपके पास कार्बन क्रेडिट्स होने चाहिए। पहला क्या था, पोल्यूशन टैक्स, और दूसरा आपके पास क्या है, कार्बन क्रेडिट्स। The second approach of price indirectly is tradable emission permits, जो मैंने अभी आपको बोला। You are producing a good, कुछ लिमिट तक तो आपके प्लांट में से धुआं निकलेगा ना। आपने कभी देखते होगा, हाउ मेनी आर हियर फ्रॉम पंजाब? तो पंजाब में जब आप पटियाला टू बठिंडा वाली रोड के ऊपर जाते हो तो आप देखते हो ब्रिक क्लीनर्स हैं बहुत ज्यादा वहां पे। तो ब्रिक क्लीनर्स ने इतनी हाइट के ऊपर चिमनी लगाई होती है और देखते हो वहां से धुआं निकलता है। फिर पटियाला बठिंडा की रोड के ऊपर चन्नों के ऊपर आपके पास देखा हुआ पेप्सी प्लांट है जहाँ पे आपके सारे चिप्स वगैरह बनते हैं। हैव यू नोटिस्ड? लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, राइट। तो वहां पे आप देखो जगह जगह के ऊपर चिमनीज लगी हुई है, और पीरियोडिकली रेगुलर बेसिस के ऊपर उन कंपनीज को अपना पोल्यूशन फ्री सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और इससे ज्यादा बात छोड़ो, आप सब लोग यहाँ पे गाड़ियां चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, कार चलाते हो, तो उसकी भी एक्सपायरी डेट होती है और आपको उसका भी पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। अभी एट प्रेजेंट दिल्ली में किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है, पोल्यूशन की। क्यों आ रही है, व्हाट इज द रीजन? पराली, क्योंकि पराली जल रही है। अब जो लोग जला रहे हैं उनके ऊपर टैक्स, उनके ऊपर चलान लगता है, राइट। तो ये सिस्टम क्या है, दैट इज टू बी टेकन एज अ आपके पास कार्बन क्रेडिट्स, कि जब आपने अपनी जो परमिशन है उस परमिशन से आप क्या करगे, बियॉन्ड चलेगे। आप कुछ लिमिट तक तो हम आपको परमिशन दे रहे हैं, बट अगर आप उस लिमिट से क्रॉस कर गए तो आपके पास क्या लगेगा, यू आर गोइंग टू हैव व्हाट, यू आर गोइंग टू पे अ टैक्स ऑन दैट। पर जो परमिशन है उसको हम, क्योंकि क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आपको देना, तो जो परमिशन है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन क्रेडिट्स। वी हैव गिवन यू अ परमिशन
to have this kind of, to this much extent you can have that. Cap and trade, अब ये मतलब समझ में आया कि आपके पास लिमिट है, कैप का मतलब होता है लिमिट है, उस लिमिट के अंदर रह के आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस आपको लिमिट दे दी ना, आपने मेरे को अपने पेपर्स फॉरवर्ड किए, ठीक है, और उस पेपर्स में जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसको मैंने अप्रूवल किया और मैंने आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से उसके ऊपर आपको परमिशन दे दी कि यू कैन हैव दिस मच ऑफ पोल्यूशन, नॉट मोर देन दैट। अगर आपने उस लिमिट को क्रॉस किया तो देन यू आर गोइंग टू हैव अ, नहीं उसके ऊपर नहीं, क्योंकि वो परमिसेबल है, वो परमिट दिया हुआ है, ठीक है। A tradable permit is a license, आपका आंसर आ गया यहाँ पे। A tradable permit is a license that allows a company to release a unit of the pollution into the environment over some period of time. जैसे प्राली is not allowed, but कुछ companies को हम ये permission देते हैं as per the product. A fixed number of permits आपके पास क्या है? A legally emitted during each period, और उसको हम क्या बोलते हैं? Cap. मतलब मैंने आपके ऊपर कैप का मतलब क्या होता है? एक रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि अगर आपका पोल्यूशन होना है तो यू आर गोइंग टू हैव अ मैक्सिमम अप टू दिस मच अमाउंट, और वो भी आपको हर बारी रिव्यू करवाना है, राइट। अ फर्म दैट जनरेट्स एमिशंस अबव व्हाट इज अलाउड बाय द परमिट, उसको फिर हम क्या करते हैं? पेनलाइज्ड करते हैं, उसको हम क्या करते हैं? फाइन्स लगाते हैं, ठीक है, राइट। अभी आप देखो जो बच्चे चंडीगढ़ में रहते हैं, स्कूल्स में चले जाओ, कॉलेजेस में चले जाओ, दे आर इंश्योरिंग कि स्कूल कॉलेजेस में आपका जो वॉशरूम सिस्टम्स हैं, आपका डस्टबिन हैं, आर दे फुली एज पर द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस, क्या वो कवर्ड हैं? क्या आपके वॉशरूम्स में सोप है? क्या आपके पास टॉल रखा हुआ है, टिश्यू पेपर है? क्या गर्ल्स के लिए अलग से सिस्टम बना के रखा हुआ है? मीन्स आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ये डिपार्टमेंट्स हैं जो आके आपको चेक करते हैं। फायर ब्रिगेड सिस्टम, आपके इस बिल्डिंग का भी इंस्पेक्शन हुआ था कि क्या इस बिल्डिंग में अगर फायर लग जाती है तो क्या उन्होंने फायर ब्रिगेड का सिस्टम सारा इक्विप किया हुआ है, क्या ये फुली सेफ बिल्डिंग्स हैं, क्या ये नहीं। What is all this? This is just to avoid negative externalities, and this is an interference of whom? By the government. Okay? आपकी सोसाइटीज जहां जहां आप रहते हो वहां पे भी देखो आते होंगे। तो a firm whose technology can reduce the pollution certificate, इसमें कुछ नहीं है, आगे चलो जी। अब यहाँ पे क्या है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, बट फिर भी वी नेवर नो कि क्या क्वेश्चन आ जाए, तो थोड़े थोड़े से पॉइंट्स हैं, प्लीज सर्कल दें, पुट देम इनटू अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल। पहला क्या था? हाई पोल्यूटर्स हैव टू बाय मोर परमिट्स, अंडरस्टूड, ठीक है। देयरफॉर फर्म्स विल हैव एन इंसेंटिव नॉट टू पोल्यूट। जो नो पोल्यूटर्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तरीके से ऑनर किया जाता है। जैसे आपने +2 में पढ़ा था ना, मिनी रत्नास, स्मॉल रत्नास, महारत्नास, तो वो क्या थे? वो इंसेंटिव्स थे कि आपने काम किया, आपने मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट किया एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट किया, तो हम आपको रत्ना बोल रहे हैं। लेटेस्ट एग्जांपल उसकी क्या है? आपके पास गवर्नमेंट का जो प्लांट था विशाखापट्टनम में, हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड, जहां पे आपके सारे शिप बनते हैं, उसको लेटेस्ट, पहले वो इतने सालों से क्या जा रहा था? लॉसेस में जा रहा था, बट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसको उसने प्रॉफिट मेकिंग बनाया और उसको प्रॉफिट जनरेट किया, तो एज एन इंसेंटिव हमने उसको किस में इंक्लूड कर दिया? नवरत्ना में इंक्लूड, जो लॉसेस में जा रहा था। यू कैन चेक इट आउट, ओके। तो ऐसे करके गवर्नमेंट आपको क्या देती है? इंसेंटिव्स देती है। सेवरल टाइप्स ऑफ है, यूनाइटेड स्टेट्स बीइंग सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन, भैया ये आपकी वो है, इसको पढ़ लेना। अंडरलाइन इन 2017, जो इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वो अंडरलाइन करवा रही हूँ। कोल सेस वाज abolished and it was replaced by GST. Then
वी हैव अ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, जिसको अभी के अभी हमने अमेंड किया 2022 में। वो क्या कह रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई द कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग सिस्टम एंड टू स्टिपुलेट एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड। ये एक्ट हमने कब अमेंड किया है, इन 2022 में। द कैप एंड ट्रेड मेथड इज एडमिनिस्ट्रेटिव चीप है, सिंपल है एंड इंश्योर्स की जो आपकी पॉपुलेशन पोल्यूशन है उसको हम कम करेंगे। और जो कैप है वो एक लिमिट पुट अप कर रही है कि आपके पोल्यूशन के ऊपर। प्लीज अंडरलाइन द मीनिंग ऑफ द कैप। द टू इंटरवेंशंस क्या है, वो टैक्स है या आपका कैप सिस्टम है। अगर मेरे पास पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है तो वो कैसे ठीक होंगी, दैट इज गोइंग टू हैव अ सब्सिडी, करेक्टिव सब्सिडी टू द प्रोड्यूसर एंड करेक्टिव सब्सिडी टू द कंज्यूमर, जैसे कि हमारी फर्टिलाइजर्स में होती है, राइट। ये गवर्नमेंट इंटरवेंशन मेरा किस केस में था तिवारी जी, हमने किस केस में पढ़ा था ये, एक्सटर्नैलिटीज। पहला मेरा था मार्केट पार, दूसरा मेरे पास एक्सटर्नैलिटीज, और तीसरा मेरे पास किसमें अब, पब्लिक गुड्स में। एक्सटर्नैलिटीज के केस में हमने सिर्फ दो सॉल्यूशंस देखे हैं, इधर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द पिगोवियन टैक्स और पिगोवियन सब्सिडी, और आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ कैप एंड ट्रेड और कार्बन क्रेडिट्स। ओके, नाउ लेट्स सी आपके पास गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मैरिड गुड्स। ये चैप्टर अब थोड़ा सा इतना ही रह गया, अगला चैप्टर आपका बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो यहाँ पे अभी पब्लिक लाइब्रेरीज, म्यूजियम, प्लीज कीप ऑन रीडिंग। रेगुलेशन आपके पास गवर्नमेंट जहाँ पे आएगा, आई विल यूज ऑफ हेलमेट, सीट बेल्ट है, ये सारी चीजें हैं। एन एडिशनल ऑप्शन टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सटर्नल बेनिफिट्स, और इसमें आपके पास राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारा किस में आता है, दैट इज इन केस टू अवॉइड द एक्सप्लॉयटेशन। प्लीज अंडरलाइन कि फ्री एजुकेशन हमारे पास कौन से एज ग्रुप में है, इट इज 6 to 14 एज पर योर मॉड्यूल। इट इज गोइंग टू बी फ्री एजुकेशन राइट, किसके पास है, 6 to 14। आफ्टर दिस आ गया गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द केस ऑफ डीमैरिड गुड्स, एल्कोहल एंड ऑल दैट। आप सबको पता है कि डीमैरिड गुड्स क्या है, कंप्लीटली दे कैन बैन, okay, or they are going to spread the awareness through advertisements and they are going to make it legally prohibited, right। strict restrictions हैं उनके ऊपर, high taxes लगाती है। या आप लोगों ने +2 में भी पढ़ा था कि जिसकी कंजम्पशन या प्रोडक्शन को डिस्करेज करना है उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लगा देती है। गवर्नमेंट कैन फिक्स अप अ मिनिमम प्राइस बिलो द डीमेरिट शुड नॉट बी एक्सचेंज्ड। Now in case of public goods आ गया जी, डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स बाय द गवर्नमेंट किसको कर सकता है, वो फ्री राइडर प्रॉब्लम को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास पब्लिक गुड्स कौन सी हैं, एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड्स कौन सी हैं, यू हैव टू कीप केयर ऑफ द एग्जांपल्स, पार्क्स, यूनिवर्सिटीज एंड म्यूजियम्स एंड ऑल दैट। क्लियर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मेन चीजें आपकी हो चुकी हैं। नॉन मार्केट प्राइस, प्लीज कीप, नॉन मार्केट प्राइस में जनरली as price controls, legal restrictions, or it can be either in the form of a price floor or a price ceiling। जो बच्चे इकोनॉमिक्स नहीं किए हुए हैं, व्हाट इज अ प्राइस सीलिंग एंड व्हाट इज अ प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस जो एक प्रोड्यूसर चार्ज कर सकता है, उससे ज्यादा वो चार्ज नहीं कर सकता। and who is going to fix up this price ceiling, this is going to be fixed up by the, मतलब प्राइस कंट्रोल जहां पे आ गया ना, तो ये प्राइस कंट्रोल कौन करेगा, इट इज टू बी डन बाय द गवर्नमेंट ओनली। प्राइस फ्लोर का मतलब क्या है कि मिनिमम दिस मच प्राइस यू शुड गेट। तो प्राइस फ्लोर हम किस में इंट्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर में एंड फार्मर्स के लिए एंड वेजिस के लिए।
MSP इन्होंने एग्जाम्पल लिखी हुई है जी। नेक्स्ट आ गया करेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस किया गया है। आपके पास अगर कोई कंटेंट आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर पूरा इंग्रेडिएंट्स होते हैं कि इस चीज के अंदर क्या क्या चीजें यूज हुई हुई हैं, ठीक है। मैंडेटरी आपके पास सेबी, व्हाट इज अ सेबी, राइट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। रेगुलेशन ऑन एडवर्टाइजमेंट, आपने देखा है कि जो भी हमारी सेलिब्रिटीज थे बॉलीवुड की, उनके ऊपर एज पर दिस एक्ट चलान हुआ, फाइन पे करना पड़ा बिकॉज दे प्रमोटेड द डीमेरिट गुड्स। उन्होंने सिगरेट को प्रमोट किया, उन्होंने टबैको को प्रमोट किया विदाउट नोइंग कि उसके हेल्थ के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास क्या होगा, इट इज जस्ट गोइंग टू बी अ टैक्स एंड सब्सिडी, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू ट्रांसफर पेमेंट्स, पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी ना चले आपके पास, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इंक्रीज द सप्लाई साइड। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। जो मुश्किल वाली चीजें थी इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, यू शुड नो what is a public good, what is a merit good, what is a demerit good. You should know what is a spillover effect, you should know what is a lemon problem, you should know what is a Pigovian tax or Pigovian subsidy, you should know what is a cap and trading system. Am I clear online students? This was comparatively easy. एक रीडिंग की जरूरत है, बट कल जब आपकी 9 बजे क्लास है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एब्सोल्युटली अ न्यू चैप्टर जो किसी ने कभी भी नहीं किया हुआ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टेक्निक्स और द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ बजट। और वो चैप्टर अगर आपने कल नहीं सुना, आपको आगे का नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसके सर्टेन टर्म्स जो है वो इंटर रिलेटेड है और बिल्कुल न्यू वोकैबुलरी है, ठीक है जी। So please tomorrow get ready to attend economics class at 9 a.m. sharp. And now 2 मिनट में क्लास को छोड़ो और रीज्वाइन करो for your correlation.